Welcome back, everyone. Now, today we are going to start a new topic, that is relation between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. Okay, what is a general meaning of relation? Relation का general meaning क्या होता है? See, the general meaning or the sense of general relation is a connection. अगर आप जनरल सेंस निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं रिलेशन की, तो वो कनेक्शन होता है. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट अ कनेक्शन which is between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomials. Okay, so there is some connection, कुछ कनेक्शन है. किनके बीच में? आफ्टर ऑल कनेक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, दो एलिमेंट्स के बीच में होते हैं. ठीक है, सो हियर देयर इज सम कनेक्शन, there is some connection between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. किसके zeros? Quadratic polynomials के zeros and coefficient of a quadratic polynomial. So there are some kind of connection that we have to see. ठीक है, उसे derive करते हैं हम लोग. So now let us consider a quadratic polynomial in variable x. So let px is equals to ax square plus bx plus c. Okay, so this is the general form of quadratic polynomial. Last videos में हमने देखा था. Clear? So this is the general form of quadratic polynomial. Is it clear? A polynomial of degree 2 is called as quadratic polynomial. Now this is a quadratic polynomial. Whenever we have to find out the zeros of a polynomial, any polynomial, हमने क्या बताया था आपको? उस polynomial को equals to 0 कर देते हैं and then we solve it and find out the value of x. इस तरीके से हमें क्या मिलता है? Zeros of a polynomial. So here in this case we have to derive the relation between the zeros and the coefficient of the quadratic polynomial. So what I will do, I will just equate this polynomial to 0. Okay, हमने क्या किया? px को 0 से इक्वेट कर दिया, इक्वल्स टू 0, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा अपना. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड whole this equation, means on the LHS side and the RHS side I will divide this equation. This equation is a quadratic equation. Okay, so I will divide this quadratic equation by a. Okay, किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं? a से, that is coefficient of x square. ठीक है, so please focus on this step. ठीक है, आप x a से डिवाइड करिए. So when you will divide a x square by a, b x upon a, c upon a is equals to 0 upon a will be 0. Clear है यहाँ तक? Now ax square upon a से a क्या हो जाएगा? Cancel out हो जाएगा. So you will get here x square plus b upon ax plus c upon a is equals to 0. ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ए अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, नाउ एज यू ऑल नो दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो मैक्सिमम कितने जीरोस आएंगे इसमें? मैक्सिमम 2 जीरोस आ सकते हैं, बिकॉज हियर द डिग्री इज 2. तो कितने जीरोस आएंगे? 2 आएंगे. ठीक है, सो इन जनरल let alpha and beta be the zeros of this quadratic polynomial. ठीक है, हमने एक जनरल अल्फा और बीटा को क्या मान लिया कि ये इसके जीरोस हैं, किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. ओके, now if this alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial, तो बेटा उसको फैक्टर में किस फॉर्म में लिख पाएंगे? x minus alpha into x minus beta. This x minus alpha and x minus beta will be the factor of this quadratic polynomial. Clear? If alpha and beta are the zeros of this ax square plus bx plus c, then x minus alpha, x minus beta will be the factor. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे उसके?
factor हो जाएंगे, will be the factor of px. Okay, and what is px here? It is a quadratic polynomial. Is it clear? So here we can write down that this px will be equals to x minus alpha into x minus beta. Clear? Because these are the factors. So ये same equation को resemble करेंगे. Clear? आप देखो यहाँ पे ध्यान से px means polynomial in x. Multiply this x minus alpha into x minus beta. X into x will be x square. x into x करेंगे तो x का स्क्वायर मिल जाएगा. Now x into beta minus x beta minus alpha into x will be minus x alpha and minus alpha into minus beta will be plus alpha beta. ठीक है, सिंपल. बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करना है आपको. क्लियर? दिस px will be equals to x square. अब ध्यान से देखो माइनस x बीटा है माइनस x अल्फा है. इस टर्म को हम पहले भी लिख सकते हैं, इस टर्म को हम बाद में भी लिख सकते हैं. तो रिजॉल्व करने के बाद अगर मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और x को मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, सिंपल. हमने सिर्फ इसको इधर उधर करके लिखा हुआ है. ठीक है, प्लस अल्फा बीटा. क्लियर है यहां तक? px is equals to x square minus इन अ ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. सम ऑफ रूट्स आ गए यहाँ पे आपके, या फिर सम ऑफ जीरोस हो गए. x आपका ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, कॉमन लिया दोनों में से हमने, प्लस अल्फा इंटू बीटा. लेट दिस इक्वेशन बी सेकंड इक्वेशन. यही दो मेन चीज है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन. इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए. We can compare the coefficient of x and the constant term. So on comparing the coefficient of x. ठीक है, दोनों इक्वेशन में आप कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करिए. So what is in this? x का क्या कोफिशिएंट है? b अपॉन a यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में. एंड इन सेकंड इक्वेशन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? इट इज माइनस इन अ ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. सो माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x. इन द सेकंड इक्वेशन वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? b अपॉन a के. इज इट क्लियर और नॉट? नाउ फ्रॉम दिस वी कैन राइट, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं एलएचएस साइड में भी और आरएचएस साइड में भी, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. इज इट क्लियर और नॉट? एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका? सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स. अरे भाई अल्फा आपका रूट था, बीटा भी आपका क्या है? जीरोस है या फिर रूट है, दोनों बोल सकते हो आप. अल्फा इज आल्सो जीरोस and beta is also zeros. Okay, so alpha plus beta is the sum of zeros. So sum of zeros, and what is b and a? B is the coefficient of x. B is the coefficient of x. And what is a? A is the coefficient of x square. B क्या बेटा? Coefficient of x. And what is a? Coefficient of x square. तो यहां से sum of zeros. सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गए? माइनस, ओके आई एम राइटिंग हियर, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? माइनस बी अपॉन ए के. व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है, सो हमने कैसे डिराइव किया आपने देखा इस चीज को. सिमिलरली वी कैन कंपेयर द कांस्टेंट टर्म इन बोथ द इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आपका c अपॉन a है. दिस इज c अपॉन a. And in the second equation, the constant term is alpha into beta. ठीक है, what is constant term? Constant term वो होता है जो कोई भी वेरिएबल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं करता है. ठीक है, क्लियर है? So here c upon a is a constant term.
एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो अ कांस्टेंट टर्म, मीन्स प्योरली नंबर के फॉर्म में वो होगा, ठीक। So by comparing the constant term from the first equation and the second equation, you will get alpha into beta equals to c upon a. ये अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट बात आई। Now what is alpha into beta? आपको दिख रहा है कि ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 0, बीटा इज आल्सो 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज product of zeros, and now what is the product of zero? It is c upon a. c क्या है आपका, यहां पे देखो, c is a constant term, c is a constant term, and what is a? A is the coefficient of x square, a is the coefficient of x square. So here the product of zeros, that is alpha into beta, is equals to constant term upon कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी होगी। अभी तक हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज ए? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। This one, alpha into beta is equals to c upon a, and alpha plus beta is equals to minus b upon a. क्लियर होगा? ठीक है यहां तक? आई होप कि यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। So in this question, find the zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 12. Okay, we have to find out the zeros of the polynomial and verify the relationship between its zeros and coefficient. So क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले आप इसका जीरोस निकालिए, ठीक है, जो आप फाइंड आउट करेंगे, और उसे वेरीफाई करिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपका जो जीरोस आया है वो सही आया है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये तो फॉर्मूला कहता है, ठीक है, एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बाय कंपेयरिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, व्हिच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इट इज, वी कैन इजीली फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर जो हमारा जीरोस आएगा उसे ऐड करके देखेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या वो फॉर्मूले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मींस वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी जा करके आपका ये रिलेशनशिप वेरीफाई होगा। इस बात को समझते हैं, ठीक है। सो हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज इन एक्स वेरिएबल, सो लेट दैट बी px, ठीक है। px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने क्या बताया था कैसे जीरोस निकालते हैं? ओके, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस? वी इक्वेट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 0। ओके, px को हमने क्या कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया, ठीक है, एंड नाउ वी विल सॉल्व इट। सो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद फैक्टराइज करेंगे इसे, ठीक है। 2x स्क्वायर 12 दिख रहा है यहाँ पे, तो फैक्टर के बारे में आप इसके सोचिए कि कैसे इसका 12 का माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24 का करना होगा, ठीक है, बिकॉज ए इज हियर 2, सो यू कैन सी दैट इट विल बी 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इजीली इसी तरीके से सोच पाएंगे, ठीक है। सो नाउ हियर 2x स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों टर्म में से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 एंड x, सो यू विल गेट x प्लस 4 माइनस 3, इसमें से कॉमन लीजिए, अगेन यू विल गेट x प्लस 4। इट मींस आपने जो फैक्टर लिया है वो सही लिया है, मींस आपकी फैक्टराइजेशन सही हुई है। क्लियर? here it will be x plus 4 and in the next one you will get 2x minus 3 is equals to 0. Now equating this one x plus 4 is equals to 0, आपको फर्स्ट 0 मिल जाएगा
और सेकंड वाले को जब आप इक्वेट करोगे तो वहां से आपको सेकंड जीरो मिल जाएगा। ओके, सो इक्वेटिंग x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जीरो मिल गया। नाउ सेकंड जीरो के केस में 2x minus 3 is equals to 0, 2x will be equals to 3 or x will be equals to 3 by 2. So first 0 is -4, second 0 is -3 by 2. ये हमारा सॉल्व करने के बाद आया। क्लियर? लेट दिस बी अल्फा, इसे हम अल्फा मान लेते हैं और इसे हम बीटा मान लेते हैं। क्लियर है? सो हमारे अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? चेक इट, अल्फा प्लस बीटा according to our solution. What is alpha here? Alpha is -4 and what is beta? Beta is 3 by 2. आपके अकॉर्डिंग सॉल्व करने पे एलसीएम देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो 1 2 2 इतना -8 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू अस अल्फा प्लस बीटा, जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली उसे ऐड करके देखते हैं पहले कितना आता है। सो -8 प्लस 3, यहाँ पे -5 by 2 आ गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सो हमने जब अल्फा और बीटा को फाइंड आउट किया, हमें अल्फा मिला -4 और बीटा मिला 3 by 2। जब उन दोनों को ऐड किया, सो वी हैव गॉट अल्फा प्लस बीटा, दैट इज द सम ऑफ जीरोस। कितना मिला? -5 by 2। अब फॉर्मूले से इस चीज को वेरीफाई करो कि अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूले से आ रहा है वो भी -5 by 2 आना चाहिए। If it is coming out to be 5 -5 by 2, it means आपका अल्फा प्लस बीटा वाला जो रिलेशन है वो सही है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से क्या होता है? -b अपॉन a होता है। क्लियर? नाउ माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो b की वैल्यू कहां से पता चलेगी? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए, व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5 है सर। ओके, एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? वो a होता है, सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2, सो 2। सो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले को यूज करने के बाद -5 by 2 आ जा रहा है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जब आप अल्फा प्लस बीटा, आपके अकॉर्डिंग जो अल्फा प्लस बीटा आया था उसको आपने ऐड किया, यू आर गेटिंग -5 by 2। ठीक है, और जो फॉर्मूला कहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, वो भी कितना आ रहा है आपका? सेम, -5 अपॉन 2। इट मींस आपने रिलेशन को एस्टैब्लिश कर दिया, बट अभी 50% काम हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को आपने वेरीफाई कर दिया। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी -b अपॉन a। ये कितना आ जा रहा है? -5 by 2। मींस आप फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन को देखो तो फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया आपका? एस्टैब्लिश कर गया। आपका जो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है वो -b अपॉन a के इक्वल आ जा रहा है, और किसके इक्वल आ रहा है? -5 by 2 के, दोनों हिसाब से। ठीक है, नाउ सेकंड वन, सेकंड पार्ट इज, भाई अल्फा प्लस बीटा को तो हमने वेरीफाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा को भी तो वेरीफाई करना होगा। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज डन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? व्हाट इज आवर सॉल्यूशन? अल्फा को हमने -4, ठीक है, एंड बीटा को 3 by 2। क्लियर? तो आपने जब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया, जो आपकी वैल्यू आई हुई है, सो यू आर गेटिंग हियर -2, दिस विल गिव यू -6, दिस विल गिव यू -6। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c अपॉन a, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेना। ठीक है, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? द कांस्टेंट टर्म इज -12। ठीक है, कांस्टेंट टर्म इज -12, सो -12। व्हाट इज a? a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, सो हियर इट इज 2, सो व्हेन यू विल डिवाइड -12 by 2 यू विल गेट -6। कुछ ऑब्जर्व किया आपने? लेट दिस इक्वेशन बी फोर्थ। थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए। अल्फा इंटू बीटा जो आपका आया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके -6 आ रहा है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो फॉर्मूला कह रहा है वो भी आपका -6 आ रहा है। सो आपने ये सेकंड जो रिलेशन है वो भी वेरीफाई कर दिया, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a इज इक्वल्स टू -6 आ गया। ठीक है,
देखो अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी -6 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा जो कि C अपॉन E होता है वो भी -6 आ रहा है। इट मीन्स आपने दोनों रिलेशनशिप को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। हैज द रिलेशनशिप बिटवीन the zeros of the polynomial and the coefficients are verified. Is it clear? ठीक है, किसी भी तरीके का अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। So now we are going to solve question number second. Question number second is find the zeros of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficients. ठीक है, उनके जीरोस में और कोफिशिएंट में आपको फिर से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है और उसको वेरीफाई करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज टू फाइंड द जीरोस एंड देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, सो हियर आवर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is 6x square minus 3 minus 7x. If you observe this quadratic polynomial, it is not in the standard form. What is the standard form? It should be ax square plus bx plus c in the decreasing order of power. ठीक है, so सबसे पहले हम उसे उस फॉर्म में चेंज करेंगे. So here let px, p for polynomial and x is in variable. Okay, so 6x square minus 7x minus 3 ये फॉर्म होगा अपना, क्योंकि अगर आप उस फॉर्म से देखेंगे तो a b एंड c की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक, तो यहां से पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए. 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3. आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो सेम मेथड अगेन, in order to find out the zeros of the polynomial, what we used to do, we used to equate the given polynomial to 0 और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक, so here px equating px equals to 0 and then we will solve this thing. What is px? It is in quadratic polynomial. 6x square minus 7x minus 3 is equals to 0. Now a is 6 and c is -3. So 6 into 3 will give you -18. 6 into 3 will give you -18 और बीच में क्या चाहिए हमें, -7. So थोड़ा सा सोचिए क्या फैक्टर हो सकता है. विदाउट solving you will get -7 minus 9x plus 2x minus 3 is equals to 0. आप देखो यहाँ पे -9x plus 2x आप करेंगे तो आपको -7x मिल जाएगा एंड -9x into 2x करेंगे तो आपको -18x स्क्वायर मिलेगा और आना भी यही चाहिए था. क्लियर? इट मीन्स वी हैव डन द फैक्टराइजेशन करेक्ट. नाउ सी 6x स्क्वायर माइनस 9x, इनमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो 3x. ठीक है, 3 कॉमन ले सकते हैं और x स्क्वायर और x में से x कॉमन ले सकते हैं. दिस विल गिव यू 2x माइनस 3. ठीक, फर्स्ट में आप क्या, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 1. अगेन यू विल गेट 2x माइनस 3. क्लियर है यहां तक? देन टेकिंग कॉमन 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में 3x plus 1 हो गया is equals to 0. Now comparing this equals to 0 and equating this equals to 0, you will get the zeros of the quadratic polynomial. समझ में आ रही होगी बात? So here comparing equating this 2x minus 3 equals to 0, you will get 2x is equals to 3 and x will be equals to 3 by 2. And similarly 3x plus 1 is equals to 0. 3x will be equals to -1, x will be equals to -1 by 3. Then so यहाँ पे एक आपका जो 0 आया वो 3 by 2 आ गया और जो दूसरा 0 आया वो आपका -1 by 3 आ गया. तो here zeros of px, what is px? Polynomial, quadratic polynomial. क्या है zeros इसके? 3 by 2 and -1 by 3. क्लियर बात? किसी को भी आप अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी इसमें से आप बीटा मान सकते हैं. सो मैंने इसको मान लिया अल्फा और इसे मान लिया बीटा. ठीक है, अब हमारे हिसाब से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, देखिए अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज अल्फा? 3 by 2. बीटा कितना है?
-1/3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते टाइम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फोकस रहनी चाहिए यहाँ। अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, ओके। सो अल्फा प्लस बीटा LCM of 2 and 3 will be 6, ठीक। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, minus 3 2 जा 6 and 2 into 1 will be 1, so 9 minus 2 will be 7, 7/6 आ गया ये। so अल्फा प्लस बीटा कितना मिला आपको? 7/6। आपके अकॉर्डिंग जो आपका अल्फा और बीटा आया था, जब आपने उसको ऐड किया तो आपको 7/6 मिल रहा है। यहां तक बात क्लियर हुई? इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। नाउ फॉर्मूला क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए? -b/a होता है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? उसके लिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे जाएंगे। व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो b कितना है अपना? -7, ठीक है। तो यहां माइनस बाहर ब्रैकेट के, अंदर आएगा ब्रैकेट -7। व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², क्या है वो? 6 है। देखो आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट 7/6। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हुए आपके? बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन सी दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन क्लियरली सी दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 7/6 के। सो आपने ये वेरीफाई कर दिया कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, जब आपने उसको ऐड किया तो भी आपका 7/6 आ रहा था, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दैट इज -b/a, जब आपने कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो भी आपका 7/6 आ रहा है सॉल्व करने के बाद। इट मींस फर्स्ट रिलेशन आपने वेरीफाई कर दिया, दैट इज सम ऑफ जीरोस। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन, सेकंड रिलेशन को भी हम एस्टैब्लिश करेंगे। सो व्हाट इज द सेकंड रिलेशन? अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा, हमारा अल्फा कितना है? 3/2। एकदम आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। ये बोर्ड में आया भी हुआ है सीबीएसई 2008 में। सो अल्फा इज 3/2 एंड व्हाट इज बीटा? बीटा इज -1/3, -1/3। क्लियर? दिस इज 3 1 जा 3 एंड अगेन 3 1 जा 6। तो in numerator you will get 1 into -1 and 1 into -1 will be -1, and in denominator you will get 2 into 1 2. Let this be equation third. Clear है यहाँ तक? सही है। 3/2 into -1/3, 3 से 3 चला गया, 1 into -1 will be -1, 2 into 1 2, done। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। What is C? Constant term. What is A? Coefficient of x²। आ जाइए इस पे। Coefficient of x² is 6 and constant term is -3. So -3 upon coefficient of x² आपका A होता है। It is 6. So 3 -3/6 क्या हो जाएगा बेटा? -1/2. This is equation number 4. So you can see from the equation number 3rd and 4th कि आपका अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया। दोनों ही केसेस में कितना मिल रहा है आपको? -1/2। क्लियर? सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A इज इक्वल्स टू -1/2। डन? ठीक है। ये -1/2 मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूं कि दोनों चीजें इक्वल आ गई। डन है ना? अल्फा इंटू बीटा भी -1/2 है और C/A भी इक्वल्स टू -1/2 आ रहा है, मींस आपका वेरीफाई हो गया। सो वी हैव फाइंड आउट the zeros of the polynomial। हमने फाइंड आउट किया zeros of the polynomial, that is 6x² -3 -7x, and we have verified the relationship between the zeros and the coefficient। हमने रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह की कोई कंफ्यूजन तो कमेंट। So now we are going to solve question number 3rd on the same topic. Obtain the zeros of the polynomial √3x² -8x plus 4√3 and verify the relationship between its zeros and coefficient। Again same topic is same type का क्वेश्चन है, only this quadratic polynomial has been changed। ठीक है, प्रोसेस वही है आपका।
क्लियर? ये सीबीएसई 2008 में आया हुआ भी है। सो हियर सेम प्रोसेस से हम जाएंगे, we will follow the same steps. So what we have to do, let px here polynomial in variable x, this is given to us as root 3x square minus 8x plus 4 root 3। ठीक है, इसके बाद आप ये चेक करो कि इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। सो इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ax square bx and c मीन्स डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में अरेंज्ड है। क्लियर है यहां तक बातें? अब इसके बाद हाउ वी यूज टू फाइंड आउट द जीरोस। फर्स्ट पार्ट तो यही है ना आपका कि फाइंड द जीरोस और यू कैन से ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। So for finding the zeros of the polynomial, what we used to do, we used to equate that given polynomial to zero. Px को equals to हम क्या कर देते हैं, zero कर देते हैं, and then we solve that particular equation. So like equating this to zero. What is Px? It is root 3x square. Root जो है वो सिर्फ 3 पे है. X square is here minus 8x plus 4 root इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करना चाह रहा है, ठीक है, वो ये देखना चाह रहा है कि आपको रूट सही से सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मींस उसका मल्टीप्लिकेशन आता है सही से कि नहीं आता है। सो हियर इफ यू विल सी a इज रूट 3 एंड c इज 4 रूट 3। तो इस टाइप का आपने फैक्टराइजेशन किया होगा। रूट 3 इंटू 4 रूट 3, रूट 3 इंटू 4 रूट 3 मीन्स a इंटू सी। सो 4 इंटू 1, यहाँ पे 1 है 4 हो जाएगा, एंड रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3। सो यू विल गेट 4 इंटू 3, रिजल्ट आपका टोटल 12 आ जाएगा। इट मीन्स व्हेन वी हैव मल्टीप्लाइड a इंटू सी वी आर गेटिंग 12। अब 12 को हमें ब्रेक करना होगा फैक्टर्स में इस तरीके से कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपको 12 मिलना चाहिए। ठीक है, सो सी हियर -6 एंड -2 सीधा सीधा दिख रहा है। आप -6 में जब -2 को ऐड करेंगे, -6 में जब आप -2 को ऐड करेंगे यू विल गेट -8। सही आ रहा है, डन। एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई द -6 इंटू -2 यू विल गेट 12। इट मीन्स जो हमने सोचा है वो सही सोचा है। ठीक है, सो ये चीज हमें यहाँ पे शो करना होगा। सो रूट 3x स्क्वायर -8x कैन बी रिटन एज -6x एंड -2x। क्लियर है बात ये? प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, ठीक है, कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है कई लोगों को। हियर रूट 3x स्क्वायर, बेटा 6 को वी कैन राइट 3 इंटू 2 और फिर 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 भी आप लिख सकते हो। सो फ्रॉम देयर व्हेन यू विल टेक, अच्छा ठीक है मैं इसको पूरा एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। 6 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 2, फिर यहाँ पे ये x डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, -2x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से यहाँ पे रूट 3x स्क्वायर एंड -√3 इंटू रूट 3 इंटू 2x, आप क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से, रूट 3 एंड x को कॉमन ले सकते हो बिकॉज यहाँ पे x है और यहाँ भी रूट 3 है। समझ में आ रही बात? सो आप यहाँ पे रूट 3 एंड x को कॉमन ले सकते हैं। इसे जब आप कॉमन लेंगे सो पहले टर्म में क्या बचेगा, कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, आप उस टर्म से जो अंदर की चीजें होंगी उससे डिवाइड देने वाले हो। सो रूट 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 3x, दिस विल बिकम x, सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा। समझ में आ रही बात? इसे आप रूट 3x से डिवाइड दो, रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x चला जाएगा, यू विल गेट हियर 2 रूट 3। समझ में आई बात? ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर उसी तरीके से इसमें क्या कॉमन ले सकते हो आप, तो इसमें तो बहुत इजी है कि सर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा एंड 4 रूट 3 को आप जब -2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट -2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। देखो
x माइनस 2√3 इसमें भी आ रहा है, x माइनस 2√3 इसमें भी आ रहा है। इट मीन्स हमने फैक्टराइजेशन सही किया है। फिर x माइनस √3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज हो गया, फैक्टर्स में बन गई हमारी। सो जीरोस क्या आएंगे आपके, इक्वेटिंग -2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, you will get x is equals to 2√3, x is equals to 2√3। सिमिलरली इसमें आप इसे जब 0 से इक्वेट करोगे you will get x is equals to 2/√3। जीरोस क्या आ गए आपके, जीरोस आ गए आपके 2√3 एंड 2/√3, ये आपके जीरोस आ गए। सो जीरोस क्या आ गए आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जीरोस ऑफ px इज इक्वल्स टू 2√3 एंड 2/√3, ये आपके जीरोस आ गए इसमें। ठीक है, नाउ वी विल हैव टू वेरीफाई कि ये जो जीरोस आए हैं ये सही आए हैं। ठीक है, मींस रिलेशनशिप हमें एस्टैब्लिश करनी है ना जीरोस एंड कोफिशिएंट में, और उसको वेरीफाई भी करना है। सो अकॉर्डिंग टू अस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, लेट अल्फा बी दिस वन, ओके, एंड बीटा बी दिस वन। ठीक है, सो अल्फा हमने मान लिया 2√3 को और बीटा में से मान ले रहे हैं कि 2/√3 है। डन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा हियर 2√3 एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज 2/√3, 2/√3। सो अल्फा प्लस बीटा, इसके नीचे 1 है, इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा √3। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा √3, 1√3 जब मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के आपको √3 मिलेगा। सो √3 इंटू 2√3, √3 इंटू √3 विल बी 3 एंड 3 इंटू 2 विल बी 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस √3 से आप √3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। इट मींस हियर यू आर गेटिंग 6 प्लस 2 8/√3 मिल रहा है यहाँ पे, 8/√3। ये आपका आ रहा है हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ रहा है 8/√3। ठीक है, अब 8/√3 आ गया तो दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, minus coefficient of x upon coefficient of x square. So what is b here? b is -8, तो यहाँ -8 लिखो। एंड व्हाट इज a? a is √3। आप ऑब्जर्व करिए माइनस इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव, आ गया 8 और नीचे √3 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन क्लियरली सी दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। मींस ये हमारा पहला जो रिलेशन है जीरोस में और कोफिशिएंट में वो वेरीफाई हो गया। सो अल्फा प्लस बीटा is equals to -b/a and this is coming out to be 8/√3, as verified from the equation number first and second। clear? अब सेकंड वाला भी रिलेशन वेरीफाई करके देख लेते हैं। सेकंड क्या अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो अल्फा इनटू बीटा। व्हाट इज अल्फा हियर 2√3, 2√3। व्हाट इज बीटा 2/√3, 2/√3। √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 इंटू 2 यू विल गेट 4। सो दिस बी इक्वेशन नंबर 3। सो अल्फा इंटू बीटा जब हमने सॉल्व किया, जो हमारे अल्फा एंड बीटा आए थे, तो हमें मिल रहा है 4। समझ में आई बात? अब अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है c/a। व्हाट इज c? c is the constant term and what is a? a is the coefficient of x square. So what is c here? 4√3 and what is a? It is √3. So 4√3 को आप √3 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जा रहा है 4। So this is फोर्थ वन। अब थर्ड और फोर्थ को आप देखिए, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को देखिए, क्या अल्फा इंटू बीटा आपका 4 आया था और अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। सो इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो अल्फा
into beta is equals to c upon a and this is equals to 4, hence it is verified. ठीक है, हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. जीरोस एंड द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या है भाई? ए बी सी. ठीक है, जीरोस क्या है? अल्फा बीटा. तो सम वाले भी वेरीफाई हो गए और प्रोडक्ट वाले भी वेरीफाई हो गए, दोनों हमने वेरीफाई कर दिया. ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. Now the next question is question number 4. If the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4. ठीक है, find the values of a. Find the value of a. If the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4. So क्या given है हमें इस क्वेश्चन में? हमें जो प्रोडक्ट है जीरोस का वो गिवन है 4 and we have to find out the value of a, that is the coefficient of x square. Product of zeros हमें given है. So let alpha and beta, let alpha and beta be the zeros of the given polynomial. Be the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6. अल्फा एंड बीटा अभी तक हम लेते हैं में, तो अल्फा बीटा हमने मान लिया इन जनरल. नाउ व्हाट इज गिवन टू अस? इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस इसका और इसका क्या गिवन है हमें? प्रोडक्ट गिवन है, मींस अल्फा इनटू बीटा. अल्फा इनटू बीटा इज गिवन टू अस 4. ये हमें गिवन है. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अभी अल्फा इनटू बीटा is given to us equals to 4, product of the zeros, and we know that the product of the zeros is equals to c upon a. ये भी तो जानते हैं product of zeros क्या होता है आपका? c upon a, which is called the constant term. c क्या है? constant term. c is constant term upon coefficient of x square. coefficient of x square. ठीक है, so what is constant term? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप देखिए और कांस्टेंट टर्म को पहचानिए. दिस इज a, that is coefficient of x square. This is b minus c and constant term is minus c. ये a है, ये b है और ये c है. So constant term is minus 6 upon coefficient of x square. What is coefficient of x square? It is a. ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही किसे रिजेंबल कर रहा है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज अल्फा इनटू बीटा एंड दिस इज आल्सो अल्फा इनटू बीटा. सो वी कैन इक्वेट द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो बाय इक्वेटिंग equation 1 and 2, we will get what? We will get minus c upon a is equals to 4. ये लिख सकते हैं हम लोग because this is alpha into beta, this is also alpha into beta और सेम ही इक्वेशन की अल्फा into बीटा है. ठीक है, सेम ही पॉलिनोमियल की. so minus c upon a is equals to 4. so by the cross multiplication minus 6 is equals to 4a. और फिर अगर यहाँ से आप a को कैलकुलेट करेंगे दिस विल बिकम minus 6 upon 4a. so from there we will have a equals to minus 6 upon 4 and this will give you minus 3 upon 2. simplest form में a की क्या वैल्यू आ गई? minus 3 upon 2. so this is the given value of a. सिंपल सा क्वेश्चन था अपना और ये CBSE 2009 में आया हुआ है. ठीक है, सिंपल सा चीज था कि आपको गिवन था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 4 एक इक्वेशन का, उसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना था. सो अल्फा इनटू बीटा हमें गिवन था 4 एंड इस पॉलिनोमियल में फिर हमने अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a होता है. वी ऑल नो where c is the constant term a and a is the coefficient of x square. By comparing the given quadratic polynomial we have find out the value of c and a और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया c upon a की जगह पे.
फिर हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, वहां से सिंपल सा एक इक्वेशन बना, उसको सॉल्व करके a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू -3/2. So in this way we have solved the question number 4. Now we will solve the question number 5. Now we are going to solve question number 5. If one of the zeros of the polynomial a square plus 9 bracket close x square plus 13x plus 6a is the reciprocal of the other. ठीक है, दोनों जीरोस क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. Find the value of a. It is given that one of the zeros of the polynomial is reciprocal of the other. ठीक है, it's a quadratic polynomial. It's a quadratic polynomial. So दो zeros होंगे आपके अल्फा एंड बीटा, और दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के. So the given polynomial like px is equal to a square plus 9, then x square is here plus 13x plus 6a. Okay, if you see the value of a is a square plus 9, ठीक है, coefficient of x square, 13 is b and the c is 6a, constant term क्या है अपना 6a. Then now क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. So here if अगर हमारा अल्फा, if अल्फा is equals to k, if अल्फा is equals to k, then बीटा कितना हो जाएगा, then बीटा will be 1/k. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि जो हमारा जीरोस हैं, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. कोई भी जो हमारा एक जीरो है, ठीक है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. तो अगर आप a को k मानते हो तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/k. रेसिप्रोकल मतलब क्या, जस्ट उल्टा. ठीक है, सो हियर अल्फा इज k एंड बीटा इज 1/k. आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, व्हाट वी विल गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई द अल्फा into beta, what we will get, we will get 1. ठीक है, कैसे, तो देखिए इस बात को, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/k से तो कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा. इट मीन्स ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि कैसे अल्फा इंटू बीटा आपको 1 मिल रहा है. एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, तो यहां से इस बात को गौर से देख लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा इज कमिंग आउट टू बी 1. k इंटू 1/k इज इक्वल्स टू 1. इस k से ये k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है हमें. डन. सो हियर द सम, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, the product of zeros of this polynomial is coming out to be 1. ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. नाउ वी आल्सो नो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, भाई अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 1, एंड वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर. अब आप देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इज 6a. ठीक है, सो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है, मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. व्हाट इज कांस्टेंट टर्म हियर, इट इज 6a, एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस 9. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 9. ये अपना इक्वेशन सेकंड हो गया, और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए. नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9. दोनों सेम इक्वेशन के लिए हैं, सो बोथ विल बी इक्वल. ठीक है, क्योंकि ये भी अल्फा इंटू बीटा है सेम इक्वेशन के लिए, सेम पॉलिनोमियल के लिए, और ये भी अल्फा इंटू बीटा है सेम पॉलिनोमियल के लिए. सो हियर फ्रॉम द फर्स्ट and second we can write that 6a upon a square
प्लस 9 इज इक्वल्स टू 1। और फिर इसे आप सॉल्व कर लो आराम से। दिस विल गिव यू 6a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू a स्क्वायर प्लस 9 विल बी a स्क्वायर प्लस 9। नाउ 0 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a। a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, वहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ हियर इट इज 9 into 1 will be 9, so a square minus 3a plus 9 is equals to 0, ठीक। a कॉमन लेंगे, a minus 3, इसमें से आप minus 3 कॉमन लेंगे, a minus 3 is equals to 0, so here you will get a minus 3 and a minus 3 is equals to 0। सो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, फर्स्ट केस में भी 3 आ गई, सेकेंड में भी 3 आएगी। सो दोनों ही केस में जो a की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, मींस a की वैल्यू 3 होगी। इज इट क्लियर? a की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। If x is equals to 2 by 3 and x is equals to minus 3 are the roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equals to 0, then what we have to find? We have to find out the value of a and b, ठीक है। अगर आपको इसके रूट्स गिवन है, मींस जीरोस गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म। क्लियर? सो व्हाट इज रूट्स? रूट्स आर बेसिकली जीरोस होते हैं हमारे, ठीक है। इसके जीरोस हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो जीरोस हैं। So here x is equals to 2 by 3 and x equals to minus 3 are the roots of the quadratic equation. So let this root be, first one को अल्फा मान लेते हैं यहाँ पे 2 by 3 and second one को बीटा, that is minus 3. Now we all know the relation between the alpha and beta and the coefficient of quadratic polynomial. What we know that sum of the roots is equals to minus b upon a, that is coefficient of x upon coefficient of x square minus coefficient of x upon coefficient of x square। इस b से कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए आप कोफिशिएंट के टर्म्स में याद किया करिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट लेट अस फाइंड आउट द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा हमारा, 2 by 3 प्लस माइनस 3, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 2 by 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बी माइनस 3, दिस विल गिव यू 3 1 is 3 and this 2 1 से 3 3 is 9, so this is giving us minus 7 upon 3, ये आ गया अपना पहला इक्वेशन, ठीक है। so after solving this alpha plus beta is coming out to be minus 7 upon 3, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस, ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज बी इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, सो दैट इज माइनस 7। सो यहाँ पे आपने 7 लिखा एंड हियर इट इज 7, माइनस साइन ब्रैकेट के बाद b की वैल्यू 7 है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट इज a, सो डिनोमिनेटर में a आ गया। क्लियर? दिस इज सेकंड इक्वेशन, दोनों ही अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरोस हैं उसी इक्वेशन के। सो दिस विल बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, from equation first and second we can write minus 7 upon a is equals to minus 7 upon 3, so नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ये भी रिजेंबल कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा ये भी रिजेंबल कर रहा है, और सेम इक्वेशन के लिए तो हमने उसको इक्वेट कर दिया। क्लियर? सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा इंटू बीटा इज हाउ मच, 2/3 इंटू -3. सो इस 3 से ये 3 कैंसिल, -1 आ जाएगा यहाँ पे. सो अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -1 विल बी -2. इसको इक्वेशन थर्ड मान लो. एंड अल्फा इंटू बीटा होता कितना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज सी, सी इज द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, तो b है. ठीक है, इस फॉर्म में याद किया करिए. दिस इज b अपॉन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ हियर एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a. सो इट इज b upon a. So alpha into beta is equals to b upon a. Alpha into beta is equals to b upon a. अब देखो b हमने a अभी फाइंड आउट किया है 3. So we will substitute the value of a here. ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे a हमने निकाला है 3. So we will substitute the value of a at this place. It is 3. इसे आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए. This is alpha into beta. This is also alpha into beta for the same equation. ठीक है, so we will just equate. So from equation third and fourth say we can write b upon 3 is equals to -2, and this will give you b is equals to -6. So b की वैल्यू आ गई -6 and a की वैल्यू आ गई 3. Hence a is equals to 3 and b is equals to -6. ये अपना आंसर हो गया, a का वैल्यू and b का वैल्यू आ गया. ठीक है, सिंपल. सिर्फ ये बात आपको समझनी थी कि जो रूट्स होते हैं हमारे वही जीरोस होते हैं. फिर हमने जस्ट फॉर्मूले को यूज किया, अल्फा प्लस बीटा, जो हमारा अल्फा है हमारा बीटा गिवन है उसको ऐड किया, -7/3 आया. Next we know that alpha plus beta is equals to -b upon a. -b upon a इस फॉर्म में से बेहतर रहेगा, आप इस तरीके से इसे लर्न करिएगा that this is minus coefficient of x upon coefficient of x square. नहीं तो इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस b को तो नहीं रखना है ना. So clearly minus coefficient of x upon coefficient of x square. So coefficient of x is 7, coefficient of x square is 8 and constant term is b. -7 upon a आ गया. अल्फा प्लस बीटा दोनों को आपने क्या कर दिया, इक्वेट किया. 7 से -7 कैंसिल आउट हो जाएगा, a का वैल्यू 3. ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो हमारा अल्फा 2/3 है, बीटा -3 है. इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. यू विल गेट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू -2. ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 माना. एंड अल्फा इनटू बीटा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला रिलेशन बिटवीन द product of zeros and the coefficient is equals to c upon a. What is c here in the particular equation? It is b. And what is a? It is a. ठीक है, coefficient of x square जो a होता है वो a given उसमें. So alpha into beta will be equals to b upon a. अभी हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की 3, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 3 हमने. ठीक है, so from there alpha into beta is coming out to be b/3. So थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो b upon 3 will be equals to -2. and b will be equals to 3 into -2. b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6. So in this way we have find out the value of a and the value of b. a की 3 आ गई और b की -6. ठीक है, so ये क्वेश्चन अपना CBSE 2011 में आया हुआ है.